Okay, shall we start? Okay. Yes, ma'am. So this is Principal Upanishad. These are the syllabus. One point is you all will have to remember direct question can ask in exam from syllabus. How? Like in which Upanishad there is description about Vidya and Avidya. There is discussion about Vidya and Avidya in which Upanishad? In which principal Upanishad? So Ishavasya Upanishad. Okay. They will give four MCQs. In which Upanishad there is this description about Atma Bhav, description about or knowledge of Brahma. Okay. Concept of Pran and Rai in which Upanishad? Prasna Upanishad. Concept of Panch Prana in which Upanishad? Prashna Upanishad. Concept of Yakshupakhan, very important, in Kena Upanishad. Okay. Mundaka Upanishad, description about Para and Apara Vidya. Greatness of Brahma Vidya. Four states of consciousness, very important, mentioned in Mandukya Upanishad. Relation to syllables in Omkara. Relation to syllables. A, U, Ma, silence. Omkara in Mandukya Upanishad. Aittreya Upanishad, concept of Atma, universe and Brahma. Shikshavalli, Anandavalli, Bhriguvalli in Taittiriya Upanishad, very important. Discussion about Panchakosha in Taittiriya Upanishad, very important. Om is also known as Udgita. In which Upanishad? Chandogya Upanishad. Shandilya Vidya, very important. ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले. शांडिल्य विद्या का डिस्कशन कहाँ हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में. कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड ज्ञान, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा. ओके, so direct question can ask in exam from this. Ma'am, can you show the previous screen, please, once? Thank you. Okay. Yes, ma'am, done. Introduction. Introduction of Upanishad. What do you mean by Upanishad? Okay, Upa means sit nearby. Ni means strong determination, with strong determination, willpower. With षड धातु. कौन सी धातु इसमें यूज हो रही है? संस्कृत की है षड धातु, विच मीन्स इसका मतलब होता है विश टू नो, जानने की इच्छा. डिजायर टू नोइंग, डिजायर टू नो इंफॉर्मेशन, नॉलेज. आपकी जानने की इच्छा है, ये मतलब होता है षड धातु. ओके, सो उपनिषद इसका मतलब क्या हो? फॉर द सीकिंग ऑफ नॉलेज सिट इन द फीट ऑफ गुरु विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. एक अच्छे, एक बड़े संकल्प के साथ गुरु का, शिष्य का गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान ग्रहण करना. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है ये पहले. उपनिषद का इसको डिस्क्राइब करो, इसको ब्रेक करके बताओ कहाँ से आया है. जैसे कि एग्जाम्पल्स में आता है सॉरी एमसीक्यूज में आता है उपनिषद, उपनिषद. बट आपको क्या बताना है? उपनिषद. ऊपर सिट नियर बाय, नी मीन्स विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक बड़े संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग संकल्प के साथ. षड धातु है जिसका मतलब होता है विष्णु. ओके, ऋग्वेद, नंबर ऑफ उपनिषद 10, शुक्ल यजुर्वेद 19, कृष्ण यजुर्वेद 32, सामवेद 16, अथर्ववेद 31.
याद कर लेना, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड, डेफिनेटली one question asked from this table. Rigveda, which Upanishad is related with Rigveda? Aitri Upanishad. Shukla Yajurved, Ishavasya Upanishad and Brihadaranyaka Upanishad. Krishna Yajurved, Taittiriya and Kathopanishad. Samaveda, Chandogya Upanishad and Kena Upanishad. Atharva Veda, Mandukya Upanishad, Mundaka Upanishad and Prashna Upanishad. ओके इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको याद करने का एक और भी अच्छा तरीका है, ईशावास्य उपनिषद फर्स्ट एंड बृहदारण्यक उपनिषद लास्ट। लास्ट नाइन्थ है आई थिंक, है ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yes, ma'am. Last. फर्स्ट एंड 10th शुक्ल यजुर्वेद। ओके ईशा ईश केन केनो और छांदोग्य उपनिषद बोथ आर सेकंड लास्ट। सेकंड ये स्टार्टिंग से सेकंड है, ये लास्ट से सेकंड है, ये सामवेदा। इसके बाद ये बीच के पार्ट है, मांडुक्य, मुंडको उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये बीच के उपनिषद अथर्ववेद के पार्ट है। उसके बाद आ रहा है कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय एंड कठोपनिषद, ये थर्ड है, स्टार्टिंग से थर्ड, और ये आई थिंक लास्ट से थर्ड है। यस ओके ऋग्वेद ये सिर्फ एक रिलेटेड है इससे, तैत्तिरीय उपनिषद। कंफर्म। नेक्स्ट ईशावास्य उपनिषद, क्या क्या है इसमें? कंसेप्ट ऑफ कर्मनिष्ठा, विद्या अविद्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ ब्रह्म एंड आत्मभाव। ये पहला प्रिंसिपल उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसके दो पार्ट्स है, मध्यान्ह दिन और कण्व शाखा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 14th चैप्टर ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का 14th चैप्टर है ईशावास्य उपनिषद। ओके इसका मतलब शुक्ल यजुर्वेद में टोटल 40 चैप्टर है, जिसमें से 39 पहले है और ईशावास्य उपनिषद 14th है। ओके ये मंत्र पार्ट है, शॉर्टेस्ट उपनिषद है। हाँ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हमारा मांडुक्य उपनिषद है ना, मुंडको उपनिषद, Yes, ma'am. Mandukya. 12th mantra. मांडुक्य उपनिषद। सो मांडुक्य के बाद में उससे बड़ा है ईशावास्य उपनिषद। पहले 39 चैप्टर्स जो है उसमें कर्मकांड का वर्णन है और 14th चैप्टर में ज्ञान कांड का। इसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो पहला जो श्लोक है, फर्स्ट वर्स इट स्टार्टिंग विद ईशावास्यम। ईशावास्यम, ईशा मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके पहले वर्स का मतलब क्या है? जो भी इस संसार में है, वट एवर प्रेजेंट इन दिस होल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज ऑफ गॉड। हमारा कुछ भी नहीं है, सबका सब। वेल्थ, ट्रीज, अर्थ, कर्मा, एवरीथिंग, वट एवर इन दिस वर्ल्ड, और एवरीथिंग इज ऑफ परमेश्वर। सबका सब परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं। ओके और हमें, ये हो गया इसका मतलब, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम कर्म बंधन में लिप्त ना हो? what thing we should do, we should have to do so that we should not attach with our karma. हम निष्काम भाव से कर्म कैसे कर सकते हैं? तो इसमें बहुत अच्छा एक तरीका बताया गया है, एक वे बताया है। One should wish to live 100 years on this earth. 100 साल तक जीने की इच्छा करना है। ओके ये क्वेश्चन आया है पहले एग्जाम में, कैसी इच्छा होनी चाहिए आपकी? 100 वर्ष तक जीने की इच्छा होनी चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। ये दो चीजें बताएंगे यहाँ पर। क्या होता है, व्हाट हैपन्स
with those who not follow this path. क्या होता है? असुर, असुर लाइक जितनी भी योनियां हैं, असुर योनियां और नर्क लोग, ऐसी जगहों पर वो जाते हैं जो फुल ऑफ सोरोज एंड इग्नोरेंस, दुखों से भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, ऐसे. So those all individuals who not follow the Atma or Atma rule, definitely they will go in Asur Yoni on and Nark Lokas. Okay? Teachers of God mentioned in verse 4, 5, the Parmeshwar is motionless, गति से रहित है, motionless, infinite, infinite है, जहां तक जा सकते हैं वहां तक. इनफाइनाइट क्या होता है? हम कभी पहुंच ही नहीं सकते उस तक. सो यही क्वालिटी है गॉड की भी. फास्टर देन माइंड, फास्टर देन माइंड एंड कैन अवेलेबल देयर, एवरीवेयर कैन अवेलेबल देयर, वेयर माइंड कैन नॉट रीच. मन से बहुत आगे है. इंद्र आदि देवता भी उनके उनसे आगे नहीं निकल सकते. कैन कुड नॉट ओवरटेक. ओके, sitting it goes faster than those who reign after it. By it, the all-pervading air supports the activity of all living beings. यहाँ तक कि एयर, जो वायु है, वो भी सभी लिविंग बींग्स, ये बोल सकते हैं, वायु भी सबसे पावरफुल है क्योंकि वो भी हर जगह प्रेजेंट है, बट ईश्वर से सभी पीछे हैं. ओके, परमात्मा इज स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे आगे. ओके, मोशनलेस है. क्लियर? महापुरुष, हु नो हिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. महापुरुष का वर्णन कहाँ हुआ है? याद रखेंगे, महापुरुष का डिस्कशन हुआ है ईशावास्योपनिषद में. क्या उनकी क्वालिटी बताई गई है? जो हर एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में ब्रह्म को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, जैसे ये इंसान इनमें ब्रह्म को देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं. हेल्प करना, अगर हम हर एक इंसान में, हर एक लिविंग नॉन लिविंग बीइंग में अगर हम ब्रह्म को देखेंगे, ब्रह्म तत्व को देखेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा जो मन है वो और प्योरीफाई होगा, चित्त हमारा और साफ होगा. हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे क्योंकि हम सब ब्रह्म को, ईश्वर के लिए कर रहे हैं. All revulsion arises only when one sees anything bad distinct from one another आत्मा. कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कब स्टार्ट होती है? जब हम दूसरे पर्सन में, जो हमारे सामने है, उसमें कुछ गलत या सही चीज देखते हैं. हमने जब इनको परमात्मा ब्रह्म मान ही लिया तो हम गलत सही नहीं देखेंगे उसमें. ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड: प्रयगात, शुक्र, अवृणम, अकायम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापरिद्धम, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Direct question asked from this part. Prayagat means like आकाश. जो आकाश है, खाली स्पेस में फैला हुआ है, इसका कोई अंतिम शोर नहीं है कि यहाँ तक ही आसमान है, यहाँ तक ही आकाश है. तो उस तरीके से गॉड भी सर्व ब्रह्मांड, सर्व यूनिवर्स में फैले हुए हैं आकाश की तरह. शुक्र, ब्राइटनेस. अवृणम, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, जिसका कोई बॉडी नहीं है, शेप नहीं है. अकायम, नो बॉडी, बॉडीलेस. नो सटल, नो ग्रोस, नो सूक्ष्म, नो स्थूल. अस्नाविरम, पंच महाभूतों से रहित है, नाड़ियों से रहित है. शुद्धम, प्योर है, मलों से रहित है. जब पंच महाभूत नहीं है, स्थूल सूक्ष्म नहीं है, तो डेफिनेटली शुद्धम होंगे वो, क्योंकि हम बने हुए हैं पंच महाभूत से. तो
हम है ग्रॉस बॉडी, सो हम हमारे से मल निकलता है, बट ये प्योर है क्योंकि इनसे ये रहित है, बॉडीलेस है, दैट्स व्हाई इज शुद्धम। अपाप विद्यम, पाप से बहुत दूर है। अनटच्ड बाय ऑल कर्मा, ऑल पाप, ऑल गुड और बैड डिड्स। कवि मनीषी, कवि मनीषी जो सबको देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं क्या हो रहा है, लाइक इससे इनसे समझो, इस इमेज से। ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट, जो दूर बैठकर सबके बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ सोच सकते हैं, सबको बदल सकते हैं। परिभू, स्वयं भू, सेल्फ बोर्न, जिनका खुद से जन्म हुआ है, किसी ने जन्मा नहीं है उनको। विद्या एवं अविद्या, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। जो अविद्या को फॉलो करते हैं वो डार्कनेस, अंधकार में जाते हैं। जो विद्या को फॉलो करते हैं वो डीपेस्ट डार्कनेस, घोर अंधकार में जाते हैं। क्यों? हमें क्या करना है, क्यों डीपेस्ट डार्कनेस में जाएंगे वो? क्योंकि हमें कभी भी किसी एक को फॉलो नहीं करना, हमेशा बैलेंस करना है। सेम सिचुएशन भगवत गीता में बताई है। कौन से अध्याय में? लिपालिका जी बताइए। Yes, ma'am. You are भगवत asking. गीता में भी बताया है, दूसरे अध्याय के 48 और 50 श्लोक आई थिंक, जिसमें बताया गया है सुख दुख सम असम सभी में हमें समान भाव रखना है, वही योग है। सुख दुख समीकृत्य 240. हाँ, 248. 248 है सम। समत्वम योगम उच्यते. समत्व योग उच्यते। यस, तो सेम सिचुएशन यहाँ है। ये डायरेक्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि विद्या वाला डीपेस्ट घोर अंधकार में क्यों जाएगा? क्योंकि हमें हमेशा समभाव में रहना है, ये बोला गया है ईशावास्योपनिषद में। अविद्या को फॉलो करने वाले तो अंधकार में जाएंगे और विद्या को फॉलो करने वाले घोर अंधकार में जाएंगे। हमें क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है, इसमें यही बताया गया है। असंभूति संभूति, असंभूति होता है जो हम फॉलो करते हैं, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, वर वधु, अम, बड़ा घर बार हो, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला सब हो। इसलिए हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, सभी गॉड की पूजा करते हैं। शिव मैम जी मैम अमृत बोला है ना विद्या को, तो नहीं क्या? यस, अमृत अमृत बोला है ना विद्या को, इसी कहाँ में बोला है हमने? हाँ इसी उपनिषद में बोला है ना। फिर अंधकार में कैसे जाएगा ऐसे बोल? अभी बताया ना मैंने, हमको दोनों बैलेंस करना है, इसलिए इन्होंने अच्छा, घोर अंधकार में बोला है कि ओके अगर ओके। आप सिर्फ विद्या को फॉलो करोगे तो आप घोर अंधकार में जाओगे। करना क्या है? दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में रह रहे हो। या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरा ही आप संन्यास ले लो, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ओके। यही यही डिफरेंस है, हाँ, थैंक यू थैंक यही स्पेशल चीज है जो इन्होंने बताया। असंभूति, यू। असंभूति जिसमें हम सभी, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअल ना असंभूति ना जो अनमैनिफेस्टेड आई सॉ द मोर वीडियोस मींस दे आर एक्सप्लेनिंग असंभूति मींस अनमैनिफेस्टेड मींस और सिर्फ निराकार मींस आई थिंक संभूति इज मैनिफेस्टेड हियर बट ओके, देखो मेरी बात सुनो। आप एग्जाम दोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ओके। ये अगर इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हिंदी में पढ़ो, छोड़ दो मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्ट, छोड़ो। ये याद रखो, असंभूति और संभूति का मतलब क्या है। संभूति का मतलब जब हम सिर्फ ब्रह्म को देख रहे हैं, सिर्फ हम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। और असंभूति का मतलब क्या हो गया? जब हम सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। मैं कृष्ण की भक्त हूँ, आप शिव के भक्त हो, कोई गणेश का भक्त है, कोई विष्णु जी का भक्त है, कोई एनोल, ओके।
और ये क्या बोल रहे हैं, ईशावास्योपनिषद में क्या बोलते हैं, असंभूति जो फॉलो करता है वो अंधकार में जाता है, और संभूति को जो फॉलो करता है वो डीपेस्ट घोर अंधकार में जाता है। क्यों? क्योंकि हम रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, और हमें सब चीज चाहिए। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, तो हमें दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों को बैलेंस करना है। We will have to balance both those ways, both the ways. हमारी इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए हम असंभूति को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म ने बनाया है, इसलिए हम इनको पूछते हैं। क्लियर? यस मैम। इस तरीके से समझो, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट में कंफ्यूज नहीं हो, ये समझो। और यही चीज दिमाग में रखो, असंभूति मीन्स जो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमारे जो आसपास जो देवी देवताएं हैं वो, और संभूति मतलब जो सबका एक है, जो जिसने पूरे संसार को, वर्ल्ड को बनाया है। हाउ शुड अ साधक प्रे टू गॉड टू गेन नॉलेज? कैसे प्रे करना चाहिए साधक को नॉलेज पाने के लिए? तो साधक बोलता है कि ये जो ज्ञान से भरा हुआ जो आपके पास जो है, जिसको इन्होंने हिरण्यमयन बोला है, हिरण्यमयन पात्रेण, ये जो पात्र है जो सोने से जो ढका हुआ है, प्लीज इसे ओपन कीजिए, क्योंकि इसी से ही हमारा अभाव हो जाएगा, हमारे ज्ञान का प्रकाश हमें मिलेगा। ठीक है, इसमें और अच्छे से बताया गया है। जो साधक है वो ईश्वर के चरणों में कह रहे हैं, बोलते हुए कह रहे हैं कि आपने अभी मेरे सभी कर्म देख लिए, मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अपना मार्गदर्शन दे। ओके, ये बोल रहे हैं ये। मतलब इसमें भक्ति भाव भी दिखाया गया है, इसमें भक्ति भाव भी दिखाया गया है, और ज्ञान योग भी बताया है, क्योंकि 14th चैप्टर है वो पूरा ज्ञान योग के बारे में ही है, शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने बताया है आप कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष मार्ग कौन सा है, इन्होंने क्या बताया है, उत्तरायण मार्ग। मोक्ष मार्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज उत्तरायण मार्ग। हाउ कैन वी गेट भक्ति, सेवा, जप, ध्यान बाय दिस? क्लियर? दिस इज इट, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद। सेल्फ एंड माइंड, inclusive realization of truth, moral of yaksh upakhyan. This is very important. तलवकार ब्राह्मण ऑफ सामवेद, तलवकार ब्राह्मण ऑफ सामवेद, केनोपनिषद। This Upanishad also known as Talvakar Upanishad. Question can ask from this part. Talvakar Upanishad, ब्राह्मणोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद नहीं है, ब्राह्मणोपनिषद है। और 9th चैप्टर है केनोपनिषद, इसका 9th चैप्टर है केनोपनिषद। फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स जो हैं वो क्या बताते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के बारे में बताते हैं। जो 9th चैप्टर है वो आता है हमारा केनोपनिषद में, जो बताता है ज्ञान के बारे में। किसके बारे में बताता है, पर ब्रह्म तत्व के बारे में। इसमें डायलॉग हो रहा है बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य के बीच में, और इसमें 4 खंड हैं। तो इसकी स्टार्टिंग के जो 2 खंड है जिसमें ये बताया गया है 4 क्वेश्चंस, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वर्स में 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसका पहले मंत्र से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, पहला मंत्र क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है? तो केन उपनिषद, फर्स्ट मंत्र, first verse is started with question, 4 questions in this mantra.
हु इज वन अलमाइटी कॉन्शियस, कौन है वो अलमाइटी कॉन्शियस, वो चेतन शक्ति कौन है जो हमारे जितने भी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियां हैं उनको उनको पावर, उनको एबिलिटी टू डू वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं। हु मोटिवेट्स देम, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं किसके द्वारा वो काम कर रहे हैं, कौन उनको मोटिवेट कर रहा है। हु मोटिवेट्स देम एंड हु इज गिविंग देम पावर टू शो योर वर्क, टू डू योर वर्क। ओके, मन, प्राण, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, these four things. Who motivates, by whom these all motivates? So by Parameshwar, he is an actuator. So they are saying buddhi, बुद्धि, मन, आत्मा, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्री और पंच ज्ञानेंद्री, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सभी है किसके द्वारा काम कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा, पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के द्वारा। ओके, और इसमें बताया गया है इनके अंदर जो क्वालिटी है, आईज के अंदर क्वालिटी है देखने का, ईयर्स के अंदर है सुनने का, माउथ के अंदर, स्किन के अंदर, इनका सभी की क्वालिटी है। माइंड का भी, मन का भी क्वालिटी है चंचल रहने का। तो सभी के पास जो पावर आई है वो बिकॉज ऑफ परब्रह्म परमात्मा। ओके, बिकॉज एवरी पावर इज ड्यू टू गॉड, every power is handled by God. Next, an individual in this world thinks that he knows truly the God. अगर इस संसार में कोई भी ये सोचता है कि हमें संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, if anyone thinks that we had known everything, nothing is unremained or remained, कोई भी शेष नहीं रहा है, तो वो सबसे मूर्ख है, हम ये बोलेंगे। सो इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज दैट ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ गॉड, बिकॉज जो ये बोल रहा है वो खुद भी एक स्मॉल पार्ट है गॉड का। ओके, अमृत रूप परमेश्वर, जो परमेश्वर है, ईश्वर है, उसको अमृत स्वरूप बोला गया है। कौन से, दूसरे खंड के चौथे वर्ष में ये कोई पूछ रहा था, परमेश्वर को अमृत स्वरूप बोला गया है, अमृत रूप बोला गया है केन उपनिषद में। ओके, ओनली ह्यूमन बीइंग कैन अटेन मुक्ति मोक्ष। हाँ, हमें पता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर आपने इस बर्थ में, इस जीवन में, ह्यूमन शरीर में अगर आपने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है, तो आगे आने वाले सभी जन्मों में जिसमें आप ह्यूमन बीइंग नहीं होगे, शरीर नहीं होगा आपका, ह्यूमन शरीर नहीं होगा, तो आप तब तक सभी एक पूरी साइकिल में घूमते रहोगे, इस जन्म मरण साइकिल में घूमते रहोगे। ओके, नो द ब्रह्म तत्व इन दिस बर्थ ओनली वर्स, ये किस वर्ष में बताया गया है, सेकंड खंड 4th 5th वर्ष में क्या बताया गया है, आप इसी बर्थ में, इसी लाइफ में सिर्फ ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। यू कैन गेट ब्रह्म तत्व ओनली इन दिस birth of human being. Okay, if in other birth you will become mosquito, so you cannot get moksha, you cannot get brahma tattva. Khand 3, this is khand 3 and 4th whole discussion about yaksh and 3 devatas. Name of Agnidev, Vayudev, Indradev, what are their name? Agnidev, Jataved, Vayudev, Matarishwa, Indradev, Madhavan. ओके, फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, जातवेद, अग्निदेव आते हैं यक्ष के पास,
यक्ष बोलते हैं कैन यू बर्न दिस स्मॉल स्टिक ऑफ, एक छोटा सा तिनका घास का क्या जला सकते हैं, कैन यू बर्न दिस? सो एट लास्ट अग्निदेव कैन नॉट बर्न दैट स्मॉल स्टिक ऑफ grass. After that, Vayudev came and he also cannot able to fly that one stick of grass. Vayudev name is Matarishwa. Same thing is after Indradev is came. As Indradev came, Yaksh disappear. Yaksh disappear. और उसके बाद कौन आता है? Queen of mountains. What is her name? Uma Devi. She came and she told Indradev that he was यक्ष, जो अभी डिसअपियर हो चुके हैं वो यक्ष थे, वो आए थे आपका अहंकार खत्म करने. He came to destroy your ego. You all are thinking that you have power because of you. No, you have power because of Brahma, Parbrahma, Parameshwar, Paramatma. You have power because of him. So always thankful to him. Okay? कभी भी खुद को ईगो में, अहंकार की भावना में नहीं रखना, क्योंकि जो आपके पास एबिलिटी है वो भी किसी के द्वारा आपको मिली है, ये बोला गया है इसमें. 103 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस खंड में, इन विच खंड ऑफ केनो उपनिषद डिस्क्रिप्शन अबाउट यक्ष उपाख्यान. ये है उमा देवी. ओके. साधन ऑफ फॉलोइंग द ब्रह्म. आपको ब्रह्म को फॉलो करना है, उसका क्या साधन बताया गया है केन उपनिषद में? तप, दम, कर्म. कर्म निष्काम कर्म, दम कंट्रोल ऑन मन, मन पर कंट्रोल करना है, तप हार्ड वर्क करना है. ओके डन. एनीवन हैव डाउट? कठोपनिषद डेफिनेशन. No, ma'am. कठोपनिषद डेफिनेशन ऑफ योगा, नेचर ऑफ सोल, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ योगा और ये पूरी जो इनकी स्टोरी है. ईशकेन कठोपनिषद इज पार्ट ऑफ कृष्ण यजुर्वेद. Dialogue between Yam and Nachiketa. Before dialogue between Yam and Nachiketa, there is also talk or dialogic story or dialogue between Nachiketa and his father. Nachiketa is the son of Uddalak and Uddalak is son of Vajrashva. Vajrashva Maharshi Arun. Not confused in this line. उनके ग्रैंडफादर थे वाजश्रवा महर्षि अरुण, फादर थे उद्यालक. कौन से वंश से रिलेटेड थे? गौतम वंश. ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन. किस वंश से रिलेटेड है? गौतम वंश. एट दैट टाइम इनके समय में गौधन सुपीरियर प्रॉपर्टी होता था. गौधन को सबसे बड़ा धन माना जाता था. जिसके पास गाय है वो सबसे धनवान है. द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड इज हु हैड गाय एट दैट टाइम. सो विश्वजीत यज्ञ इन्होंने कराया. किन्होंने? उद्यालक जी ने, वाजश्रवा जी ने. और विश्वजीत यज्ञ में क्या करना होता है? जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपका घर बार दौलत, सब गौ गाय घोड़े सब आपको दान करना होता है. बट इन्होंने ये क्या कर रहे थे? सिर्फ बूढ़ी जो अभी काम ना नहीं आएंगी, जो दूध भी नहीं दे सकते हैं, जो आपका हल भी नहीं चला सकती हैं एंड ऑल, कुछ भी काम की नहीं है, बहुत ही मरने जैसी हालत है, ऐसी गाय उद्यालक जी विश्वजीत यज्ञ में और जो साधु संत है उनको दान दे रहे थे. तो ये अच्छा नहीं लगा यम को. नचिकेता जो इनके बेटे हैं उनको अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको तो मुझे देना चाहिए किसी को. मैं तो आपके सबसे ज्यादा जुड़ी हुई चीज हूँ. So to whom will you give me?
मुझे किसको दोगे? To whom will you give me? This type of talk between both of them. Total 2 chapters है. Every chapter has 3 value. This is important. Total value is 6. Important. Upanishad starts from Majasva Rishi, son Uddalak, and his son Nachiketa communication. Father and son discuss communication. Nachiketa is to Yama and okay. So here Uddalak told his son that okay, I am giving to you Yam. मैं तुम्हें यम को देता हूँ, जाओ. ओके, सो नचिकेता चुपचाप चले जाते हैं यम के पास बिकॉज ऑर्डर आया है उनके फादर से. ओके, ही इज नॉट आस्किंग अगेन another question from his father, why are you giving to me, why are you giving to me to Yama, I am the honest son of you, yours, why are you giving? He is not asking anything, he is going to Yam. Okay, and I think 3 days. Yes. यम ही आउट ऑफ स्टेशन. यम अपने घर पर नहीं होते हैं तो 3 दिन जो नचिकेता है वो बाहर वेट करते हैं, उनके दरवाजे के बाहर, मेन गेट के बाहर वेट करते हैं, घर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं. तो जब यम आते हैं उनके घर पर तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये एक अपमानजनक चीज है, बिल्कुल इंसल्ट जैसी बात है कि आपके घर कोई गेस्ट आया है और वो 3 दिन से बाहर है. दिस इज सो बहुत बुरी बात है एक तरीके से. ओके, सो उनकी यम की वाइफ उनको बोलती है कि यू शुड गो देयर एंड यू कैन, आपको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे. You will have to apologize for your mistake. You did not come for 3 days and your guest is out there for 3 days. So वो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और उनको 3 बार बोलने के लिए, 3 बार देने के लिए बोलते हैं कि आप मेरे से 3 बार मांग सकते हैं. 3 बार का किसने बोला? यम ने बोला नचिकेता से. तो सबसे पहला वर मांगते हैं नचिकेता, काम डाउन हिज फादर एंगर. जब मैं अपने घर जाऊं, whenever I went to my home, my father will be happy to see me. मेरे पिताजी मुझे देखकर खुश हो जाए, जितना भी दुख दर्द हमारे बीच में जो भी था सब खत्म हो जाए और हम अच्छे से रहे, मुझे देखकर ही वो प्रसन्न हो जाए. He will be become happy after seeing me. Okay, so Yam gave him first वर. तो ये हम बोलते हैं कि ओके, आप जब जाओगे तो आपके पिता खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट करेंगे. सेकंड, अग्नि विद्या. स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग अग्नि. ओके, सो इंग्लिश स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस इन हिंदी और इंग्लिश? you are understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So second blessing is Agni Vidya, which is after that also called as Nachiketa Agni. And third is Atma Vidya, Atma Gyan. What will happen after death? So question can ask in exam like what is the third blessing of Nachiketa? What is the third blessing who give by Yam to Nachiketa? Okay. What is the second blessings? Okay, like this type question can ask. Agni So, Vidya. And this is also important part. Different types of temptations Yam gives to Nachiketa so that he can take back his blessing. हाँ, तो एक सेकेंड. तो अग्नि विद्या जो एक ऐसी विद्या है जो बहुत गूढ़ है,
गुड है, अद्भुत है, और हर किसी को ये नहीं दे सकते हैं। ओके, हर everyone is not have too much ability to understand this, to take it to us. हर किसी के पास एबिलिटी नहीं है। ये भी बोल सकते हैं हर कोई इंसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एवरी पर्सन इज नॉट एबल टू बिकम। वैसे तो हम बन सकते हैं, बट हमारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं है। तो सेम सिचुएशन है। तो यम ने बहुत सारी टेम्पटेशंस उनको दी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पटेशंस उन्होंने उनको शो किया था कि हम आपको 100 साल तक ऐसे ऐसे पुत्र, ऐसे बच्चे और पुत्र आपको देंगे जो 100 साल तक जिएंगे। आपको गाय देंगे, काउज, एलिफेंट, डियर्स, हाथी, घोड़े और सुंदर सुंदर परियां और ब्यूटीफुल, बहुत सारा इस तरीके से टेम्पटेशन इन्होंने दिया था। चैरियट, ऑल डिजायर्स फुल, आपकी सभी जो भी इच्छाएं सब सब पूरी हो जाएंगी। आप इस पूरे धरती पर राज करोगे, आप बहुत लंबी आयु जियोगे इस तरीके से। बट नचिकेता ने रिप्लाई किया, ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। ये जो भी थिंग्स है सभी टेम्परेरी है। आई डिड नॉट रिक्वायर दीज। ह्यूमन बींग कैन नॉट फुलफिल देयर थर्स्ट ऑफ मनी। ह्यूमन बींग जो है कभी भी अपनी जो धन की जो प्यास है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी उनकी। वो ऑलवेज रिमेन हैंग्री, हमेशा वो ऐसे ही रहेगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? अग्नि विद्या। सो यम बताते हैं श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग होता है सेवा भाव, निष्काम भाव से श्रेय, निष्काम भाव से काम करो, सेवा करो, बुढ़ों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, दान करो, तप करो, निष्काम भाव से कर्म करो। एक ये श्रेय मार्ग होता है। मतलब जो यम है वो स्टार्ट करते हैं अग्नि विद्या देने का। ओके, तो उसमें फर्स्ट स्टेप आ रहा है ये श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग के बारे में वो क्लियर कर रहे हैं। दिस इज श्रेय मार्ग एंड दिस इज प्रेम मार्ग, जो हमें प्यारा लगता है। लाइक हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ये रील्स, एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं। नई नई चीजें आती है, नई ड्रेस आ रही है, नया स्टाइल आ रहा है, नया आर्किटेक्ट आ रहा है, आप कैसा नया डिजाइन बना सकते हो, नई गाड़ी आ रही है, सब चीज। ठीक है, तो हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। टेम्पटेशंस जो है वो इंक्रीजिंग डे बाई डे, एवरी मोमेंट। सो दिस इज प्रेम मार्ग। ठीक है, तो हमें प्रेम मार्ग को डिस्कार्ड करना है, श्रेय मार्ग को बढ़ाना है, अपग्रेड करना है। दिस इज अग्नि विद्या। ओके, एंड बिकॉज ऑफ यम बहुत खुश हुए थे नचिकेता का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति देखकर यम बहुत खुश हुए थे, इसलिए उन्होंने अग्नि विद्या को का नाम दे दिया नचिकेता विद्या। ओके, कहाँ है ये? फर्स्ट चैप्टर सेकंड वल्ली में, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग। एनालॉजी ऑफ चैरियट एंड चैरियट, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। डेफिनेटली क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, मे बी इस बार भी चांस है। लॉर्ड ऑफ चैरियट, आत्मा क्या है? इस एक सेकेंड, जस्ट होल्ड। ओके, सो इस पूरे रथ का जो राजा है, जो यहाँ बैठे हैं बीच में, वो है आत्मा। ओके, उनके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही सबको दिशा निर्देश दे रहे। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं चलना आगे, तो चलेगा ही नहीं। ना तो घोड़े भागेंगे, ना ड्राइवर कुछ करेगा, उनका ही सब मेन वही है। वो रुक गए तो सब रुक जाएगा। ओके, सो हमारी आत्मा भी उसी प्रकार से है, सेम एज आवर आत्मा। आत्मा इज लॉर्ड ऑफ चैरियट। और बॉडी, दिस रथ, ये जो रथ है पूरा, सॉरी ये जो रथ है पूरा, ये है बॉडी, हमारी शरीर, जो इस आत्मा को चला रहा है। इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, जो ये ड्राइवर जो बैठे हैं, ये है हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि।
मन, दीज आर आर मन, ये जो दो रस्सियां दिख रही हैं, थ्रेड्स, जिससे हम फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे मन है। अगर हमने मन को ढीला किया तो हमारे सेंसेस इधर उधर भागेंगे, हमारे घोड़े इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। ठीक है, तो हमें रस्सी को टाइट रखना है, मन को टाइट रखेंगे, हम बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे सेंसेस भी कंट्रोल में होंगी। ठीक है, और ये सब कब होगा? जब हमारा ड्राइवर ड्राइवर हमारा अटेंटिव होगा। ओके, तो हमारा इंटेलेक्ट से रिलेट है ये। जब हमारा इंटेलेक्ट हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो हम मन से भी सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। और जो पाथ है उसको बताया गया है सब्जेक्ट, हमारी विषय, डिफरेंट डिफरेंट विषय। क्लियर? सुप्रीम पर ब्रह्म, so this is high to low, this is supreme Brahm, and we are moving slow down to down, like Atma, Buddhi, Man, subject and senses. Okay, these are the levels of power we can correlate with this, like, okay, this is important. 11 doors in body, 11 द्वार क्या है? 2 eyes, ears, 2 nose, 2 holes of doors, 1 mouth, 1 anus, vaginal opening, navel and brahmarandra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 doors in body mentioned in Kathopanishad. Uttishta Jagrat Parapya Varani Bodhata. This is very important shloka in discussed in chapter first or third valli 14th shloka. Dialogue between Yam and Nachiketa. Arise, awake and stop not until he learns this self-knowledge. उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको ज्ञान ग्रहण ना हो जाए। ये किसका है? ये डायलॉग कौन बोलते थे? स्वामी यस, विवेकानंद। विवेकानंद जी। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर थर्ड वाली, टू हुम परमात्मा मीट्स, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट उपनिषद में भी पढ़ा था कि साधक को क्या करना चाहिए लास्ट में जब उसे परमात्मा प्राप्त हो जाए, या किस तरीके से परमात्मा की डिजायर करना है कि आप मेरे पास आओ। तो यही चीज इसमें बोला है, टू हुम परमात्मा मीट्स। थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं, पूरा वही नहीं बोला है। परमात्मा किसको मिलते हैं? जो जिसने मन को कंट्रोल किया है, सेंसेस को कंट्रोल किया है, जिसने सेंसेस को कंट्रोल किया है, मन को कंट्रोल किया है, और जिसकी सभी भावनाएं, सभी इमोशन प्योर हैं, वही आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। नेचर ऑफ परब्रह्म, परब्रह्म का क्या नेचर है, ये हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था। अकायम, अस्नाविरम, अव्रणम, सेम है। इधर थोड़ा और शॉर्ट में दिया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, सब जगह व्याप्त है, कोई उनका बॉडी नहीं है, बॉडीलेस है, अकायम है, थंब साइज, पहली बार थंब साइज बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईश्वर का क्या साइज बताया है और किस उपनिषद में बताया? कठोपनिषद में थंब साइज बताया। गॉड ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, ये जो है अतीत और भविष्य के ईश्वर है, सब इनको पता है क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। नेचर ऑफ ओम, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड वल्ली में है। ओम इज ब्रह्म, दैट वर्ड इज पर ब्रह्म। ओम के बारे में भी बताया है। अभी तक हमने जो पढ़ा है ओम का डिस्कशन आई थिंक नहीं है ईशावास्य उपनिषद और केन उपनिषद, तो ये चीज आप याद रखेंगी। ईशावास्य उपनिषद और केन उपनिषद में ओम का ज्यादा वर्णन नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि किस उपनिषद में ओम का वर्णन नहीं है, तो आप थोड़ा सा आइडिया आपको रहे कि ईश और केन में ज्यादा डिस्कशन नहीं है ओम के बारे में। नेचर ऑफ ओम बताया है कि ये ग्रेटेस्ट सपोर्ट है, इफ एनीवन नो दिस, नो
anyone know this world, he can get any desired thing. अगर जिसने भी ओम का सब कुछ, ओम का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया है, उसकी साधना कर ली है, उसका ध्यान कर लिया है, तो वो इस पूरे संसार में कुछ भी पा सकता है जो भी उसकी इच्छा हो. He can get anything which is his desire. नेचर ऑफ आत्मा, आत्मा का क्या नेचर है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, नो कॉज ऑफ एनीथिंग. वो किसी का भी कारण नहीं हो सकती. दिस आत्मा कांट डाई, दिस कैन नॉट किल. ना ही तो वो मर सकती है, ना ही किसी को मार सकती है. ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक से रिलेट कर रहा है, बताओ जल्दी. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावः. That is second chapter, 23 sloka. 23. Yes, यस, 23. वेरी गुड, वेरी गुड. क्वेश्चन आ सकता है वैसे भी. नैनम छिन्दन्ति डैश, नैनम दहति डैश, ऐसे आएगा क्वेश्चन. ओके. थर्ड ब्लेसिंग, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ. तो नचिकेता पूछते हैं डेथ के बाद क्या होता है. तो बता देते हैं, क्योंकि यम को क्या होता है, सॉरी नचिकेता क्या होता है, बहुत सारा उसको कंफ्यूजन होता है. कोई बोलता है कि मरने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, कोई कहता है मरने के बाद आप ऊपर चले जाते हो, आप स्वर्ग में चले जाते हो, आप नर्क में चले जाते हो, आप फिर से ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, आपकी, या फिर आपका शरीर यही रह जाता है और आत्मा चली जाती है. आत्मा मरती नहीं है, वो फिर से किसी दूसरे शरीर में आ जाएगी. तो इसमें उसको कंफ्यूजन था. He's bit confused in most theories about death or atma, death and atma. Okay, so this is the third blessing. उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं हम. डेफिनेशन ऑफ योगा क्या बताया है? कलेक्शन ऑफ मन, बुद्धि, सेंस ऑर्गन्स. जहाँ पर भी हमारा मन, बुद्धि और हमारी ज्ञान इंद्रियां मिलती हैं, उसी समय, उसी पल को हम योग बोल देते हैं, है ना. तभी योग हो जाता है. जब हमारी मन, बुद्धि और हमारी ज्ञान इंद्रियां मिल जाती हैं तो योग हो जाता है. ठीक है. तो ये है थर्ड ब्लेसिंग. तो क्लियर आउट कर देते हैं, हम उनको बता देते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है. जो आत्मा है वो चली जाती है, फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और जो शरीर है वो यही रह जाता है. दिस इज थर्ड ब्लेसिंग. ओके, सिंपल. के बाद ये बताते हैं, ये है डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद. इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है. सेकंड चैप्टर, थर्ड वल्ली और 10th श्लोका. When 5 sense organs along with man, along with intellect also does not make any effort. कोई भी एफर्ट ना करे, सब एक जगह रुक जाए, सब मिल जाए, मन, बुद्धि और ये ज्ञान इंद्रिय सब मिल जाती हैं, वही जो स्टेट होती है, वो जो स्टेट, वो कंडीशन होती है, उसी को ही योग बोला गया है. अल्टीमेट सुप्रीम स्टेट योगा. ओके. सेकेंड चैप्टर, थर्ड वाली सेकेंड वर्स में बताया स्टेबल परसेप्शन ऑफ सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट. दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस्ड योगी. वही है, सेम चीज है. ओके. ये एक इम्पोर्टेंट चीज बताई है इन्होंने. जो ये पूरा संसार है वो एक उल्टे पेड़ की तरह है. ये पूरा जो संसार है, दिस इज लाइक अ डाउन ट्री, डाउनवर्ड ट्री. जो जड़ है ये ईश्वर है, परमात्मा है, और जो ब्रांचेस है वो सब हम हैं. देवता, पित्र जो जा चुके हैं, हमारे दादा, परदादा, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड टू ग्रैंडफादर, all human beings, whatever in this world, all are branches. Okay, ईश्वर ऊपर है और हम सब नीचे हैं, ये बताया है लोग. आगे है योग प्रभावप्ययो. योग प्रभावप्ययो, क्रिएशन ऑफ गुड संस्कार. कैसे क्रिएशन होता है गुड संस्कार का? तो इन्होंने दो चीज बताई है.
प्रभया और अपया। प्रभया का मतलब होता है अच्छे संस्कारों का उदय होना, और अपया का मतलब होता है बुरे संस्कारों का डिस्ट्रक्शन होना। तो इन्होंने ये वर्ड्स दिए हैं, इसको हम समझ चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चांस है कि अपया को डिफाइन करो जो कठोपनिषद में है, प्रभया को डिफाइन करो तो कठोपनिषद में, ऐसे चांस कम है इनका, वेरी लेस चांस टू कम इन एग्जाम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जीवात्मा आफ्टर डेथ? तो क्या होता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर 101 नाड़ियां बताई, 100 नाड़ियां कहाँ बताई थी बताओ? योग वशिष्ठ। वेरी गुड, हमने पढ़ा था सुबह योग वशिष्ठ में 100 नाड़ीज बताई थी मेजर। इधर बताई है मेजर प्रिंसिपल नाड़ीज कितनी बताई है? 101। याद रखना है डिफरेंस। वन नाड़ी मूव फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन, एक नाड़ी है जो हृदय से होकर ब्रेन तक जाती है जिसे सुषुम्ना बोलते हैं। मूर्धा, हाँ, जो हृदय से होकर मूर्धा तक जाती है, मतलब ब्रेन तक जाती है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। जिसको भी परम धाम जाना है, परमेश्वर की प्राप्ति करना है, वो सभी इसी नाड़ी के थ्रू जाते हैं। दिस इज द वे टू रिच टू द लेवल ऑफ परम धाम, परमेश्वर। अदर पर्सन्स मूव अराउंड अनदर योनि, और जिसको नहीं जाना है, जिसको परम धाम परमेश्वर नहीं जाना है, if anyone have no desire to go reach to the param dham, so definitely they are living in this body, in this world with these 100 nadis. Okay, इन 100 नाड़ियों से ही के द्वारा ही वो इस योनि में अलग अलग योनि में घूमते रहते हैं। अपने कर्म और वासना के, जैसा उन्होंने कर्म किया है, जैसी उनकी वासनाएं हैं, जैसे उनके कर्म बने हैं, वो उस कर्म के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग उनको फिर जन्म मरण साइकिल में बनते जाते हैं। जैसा उनका कर्म वासना रही है, वैसे ही उनको नेक्स्ट बाई टर्म के साथ साथ उनको डिफरेंट जन्म मिलते जाते हैं। कभी घोड़ा, कभी गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, उनको मिलते जाते हैं। ये जन्म मरण साइकिल चलता रहता है इन 100 नाडीज में। समझ में आया? 101 होती है सब में तो, परंतु जिसको मोक्ष प्राप्ति चाहिए वो इस वन के सहारे सुषुम्ना से जाता है ऊपर, और जो इसका यूज नहीं करता है वो इन 100 नाड़ी से इधर ही घूमता रहता है। इसमें थंब साइज बताया है, थंब साइज मेजरमेंट ऑफ परम पुरुष। ओके, हाँ, ये बताया है साइज, और बताया है लोकेशन। लोकेशन भी अभी तक कहीं नहीं बताया। लोकेशन क्या है? ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में रहते हैं। So this is complete Kathoपनिषद. Should we continue or tomorrow? Tomorrow, we ma'am, will be- please. Tomorrow, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so tomorrow on the same timing. Okay, Okay, same ma'am. timing. Thank you. 8:30. We will revise from Prashnopanishad. Yes, Lipalika ma'am, please start Shanti part. Okay, ma'am. So requesting all of you sit straight, spine, neck erect,